Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 27.3 कॉम्पोजिशन के बारे में, जिसको संयोजन कहते हैं। एनी फोटोग्राफ मस्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ। कोई भी तस्वीर खुद बोलनी चाहिए। दिस मीन्स दैट ऑन सीइंग अ फोटोग्राफ द पर्सन वॉचिंग इट मस्ट इमीडिएटली अंडरस्टैंड वॉट इट इज ट्राइंग टू कॉन्वे। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति फोटोग्राफ देख रहा हो उसे तुरंत यह समझ में आ जाए कि फोटोग्राफ क्या कह रहा है। There is a saying that a single picture is worth 1,000 words. कहा भी गया है कि एक चित्र 1,000 शब्दों की ताकत रखता है। This means that a picture can convey a message more convincingly than 1,000 words. इसका मतलब यह है कि एक चित्र सरलता से, आसानी से 1,000 शब्दों के बराबर संदेशों को दे सकता है। You may have seen many photographs that leave a lasting impression on you. आपने अनेक फोटोग्राफ देखे होंगे जिनका आप पर गहरा प्रभाव पड़ा है। Have you wondered why it is so? क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? This is because the subject which is photographed is placed in the picture frame in such an intelligent manner that it leaves an impact on the viewer. This placement of the subject or subjects within the picture frame is called composition. ऐसा इसलिए क्योंकि विषय जिसका फोटो खींचा गया उसे इस बुद्धिमानी से फ्रेम किया गया कि उसने देखने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ा। विषय के इस समावेशन या चित्र में, फ्रेम में, विषय में समावेश को संयोजन, कॉम्पोजिशन कहते हैं। Composition has a special meaning when it has to convey news to the public, as is the case in photojournalism. संयोजन विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है जब फोटो पत्रकारिता में लोगों को समाचार सुलभ कराना होता है। It is the placement of the subject being photographed that leaves an impact on the viewer. यह फोटो खींचे विषय का समावेशन है जो देखने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ता है। Let us consider a situation where you have to show a photograph of a poor man. You can take a simple photo of a beggar on the street and convey your message. But if the same photograph is taken in such a manner that the beggar is close to the camera but at a distance is also a rich man sitting in a big car, this picture will have a greater impact because its composition shows the contrast in the two people in the same picture and highlights the condition of the beggar as against the rich man. One can think of many such instances. अब देखिए, अब हम एक परिस्थिति पर विचार करेंगे जिसमें आपको एक गरीब आदमी का फोटोग्राफ प्रदर्शित करना है। आप सड़क पर भीख मांगते किसी भिखारी की सामान्य फोटो खींचकर अपना संदेश दे सकते हैं, लेकिन यदि यही फोटोग्राफ इस तरह से लिया जाए कि भिखारी कैमरे में सामने हो तथा पीछे एक संपन्न अमीर आदमी कार में बैठा हो, ऐसे में यह चित्र ज्यादा प्रभावपूर्ण होगा क्योंकि इसका संयोजन दो लोगों के बीच के विरोधाभास को प्रदर्शित करता है तथा गरीब आदमी की परिस्थिति को अमीर आदमी के समक्ष स्पष्ट करता है। आप ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं। Composition also deals with making the picture look more appealing to the eye. Action photographs of war or sports show a kind of energy that should make the viewer feel
that he is in the midst of those action. अब देखिए, कॉम्पोजिशन संयोजन से फोटोग्राफ को आंखों के लिए अपील करने वाला बनाया जाता है। युद्ध तथा खेल के एक्शन फोटोग्राफ एक विशेष ऊर्जा का सृजन करते हैं तथा देखने वाले उसे अपने आसपास महसूस करते हैं। आगे देखिए, composition also demands balance. That is to say, a photograph must be taken in such a manner that it should not seem to make our eye wander to a corner. The various subjects should be so organized that the picture has a pleasing effect. There are some basic rules of framing, of which the rule of thirds is the most common. It states that elements in a frame must be so placed that they roughly fall on the intersection of the lines that divide the frame in 3 rows or 3 columns. There is no hard and fast rule, yet it helps in leaving a positive impact on the viewer. अब देखिए, संयोजन कॉम्पोजिशन संतुलन की भी मांग करता है, बैलेंस का डिमांड करता है। इसका मतलब यह हुआ कि फोटोग्राफ इस तरह से लिया जाए कि देखने पर हमारी आंखें किसी एक हिस्से या कोने में केंद्रित नहीं हो। विभिन्न विषय इस तरह से संगठित होने चाहिए जिससे तस्वीर का सुखद प्रभाव पड़े। फ्रेमिंग के कुछ सामान्य नियम होते हैं, जिनमें से तीसरे का नियम सबसे ज्यादा सामान्य है, रूल ऑफ थर्ड्स। यह नियम स्पष्ट करता है कि फ्रेम में स्थित तत्व इस तरह अवस्थित हों कि वे लगभग उन विभाजक लकीरों पर पड़े जो फ्रेम को 3 कॉलम तथा रो में बांटती हैं। हालांकि यह अनिवार्य नियम नहीं है, लेकिन यह देखने वाले पर पॉजिटिव इम्पैक्ट, सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में कामयाब होता है। Camera angle is another factor that has an impact on composition. If the person in a picture is an important person like a leader or a film personality, one composes the picture by keeping the camera below the person's eye level. When this is done, the person shall appear much larger. Similarly, taking a picture from above a person's height, also called top angle, makes the person appear small. All such methods of compositions are employed to make the picture more effective in terms of what is trying to say, so that the viewer can immediately understand its meaning. Camera angle अन्य वह तत्व है जो संयोजन को प्रभावित करता है। यदि तस्वीर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे कोई नेता या फिल्मी व्यक्तित्व है, तो फोटो लेते समय कैमरा उनकी दृष्टि रेखा से नीचे रखा जाएगा। ऐसा करने पर वह व्यक्ति ज़्यादा बड़ा नजर आएगा। इसी तरह जब व्यक्ति की ऊंचाई से ऊपर से शॉट लेगा तो उसे टॉप एंगल कहेंगे, जिसमें व्यक्ति छोटा नजर आएगा। संयोजन के यह सभी प्रकार तस्वीर को ज़्यादा प्रभावी बनाने में मदद देते हैं कि क्या वह कहना चाहती है, जिससे दर्शक आसानी से अर्थ को समझ सकें।